morning. Today we discuss about the transistor basic detail. Transistor basic details, which are for BSc Physics Honors 6th Sem. First one is bi means two, polar means poles, transistors. What is bipolar transistor? Actually, bipolar transistor is consist of what? Two back to back junctions. Let it is NPN. There are two junctions. First is NP junction, second is PN junction. Okay. The first part of a transistor is called emitter. Okay. While the second one is called base and third one is called collector. As the name suggests, emitter is used to emit charge carriers and like electrons, holes. While collector is used to collect all these electrons and holes which are emitting from the emitter. You can say that a junction transistor is simply a sandwich of one type of semiconductor between two layers of the others. Here a p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductors. There are many things which you have to learn from a transistor. There are, we have to say, two junctions. First is emitter base junction. This is emitter base junction, and this is collector base junction. We have to explain one by one. Okay. What is the you have to say that what is the symbol of this transistors, like NPN. This is symbol of NPN transistor. A arrow in the symbol always indicate what? The direction of convention. We have to this
emitter, base. This is the direction of a conventional current. It is not NPN. It is picturization of PNP. While in case of NPN, the symbol is like this. Emitter, base, arrow in the symbol of transistor always indicate the direction of conventional. Okay, I already said that it is emitter. What is the features of emitter? एमीटर की फीचर क्या है? क्या एमीटर क्या होता है? एमीटर एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है ट्रांजिस्टर? इट इज हैवीली डोप. इट इज हैवीली डोप पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर. Heavily doped. Why it is heavily doped? Why? Because this part of transistor is actually father of all current carriers. Like क्या? Electrons in NPN transistor and holes in case of what? PNP transistor. I already said that it is heavily doped. It is heavily doped. Why? Because it is generator. जहाँ से इलेक्ट्रॉन या होल या जो चार्ज कैरियर्स हैं, होल हैं या आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ से होंगे? जनरेट एमीटर से. किससे? एमीटर से. इसलिए ये हैवीली डोप्ड है क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे या होल्स जनरेट होंगे उतने ही ज़्यादा करंट मिलेगा. करंट मिलेगा उतनी ही ज़्यादा पावर मिलेगी. पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर. आई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी. जितना ज़्यादा करंट हमें चाहिए उतने ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होनी चाहिए, यानी उतने ही ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. अब है बेस. क्या है? बेस. नाउ बेस it is middle part. It is middle part of
ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसका नाम है ना, उसी में बहुत कुछ छुपा है। ट्रांजिट करना, भेजना, अब पास करना। ट्रांजिस्टर यानी ये क्या कर रहा है? करंट पास कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? आपके एमीटर से जो करंट आ रहा है वो बेस के थ्रू कलेक्टर में जा रहा है। ठीक है, तो जो बेस है आपका वो लाइटली टॉप्ड होता है। इट इज लाइटली टॉप्ड एंड इट्स विड्थ इज अबाउट 10⁻⁻6 मीटर। इसकी विड्थ आपकी कितनी है? 10⁻⁻6 मीटर। And you have to say it is very lightly topped. You have to say very lightly topped. While collector. What is collector? Name. Its name suggests that it collect. It is collect or pull. What? The current carrier, like कौन? Electrons or okay, these are basic features of a transistor. Okay, some important things you have to keep in mind about collector is that its region is larger than emitter. If this is emitter region, then this region is about base and this region is about of collector. It means its physical part is largest part, smallest part, and it is large part. In the case of physical, these are about physical feature. Okay, for a proper functioning of transistor there is a word called biasing. What is means of biasing? For a proper functioning of a transistor, it is essential to apply what voltages of correct polarity across two junctions. This junction is called emitter. This is called what? Collector junction. Biasing, proper biasing. It means correct polarity. Provided to each junction, then we have to say it is rightly biased. हम बोलते हैं ना कि ये biased है, यानी वो किस तरफ झुका हुआ है, यानी क्या हम कौन सी पोलरिटी प्रोवाइड करें जिससे ये ट्रांजिस्टर एक्यूरेटली बिहेव करे या नॉर्मल फंक्शन करे। हम जब नॉर्मल फंक्शन यदि चाहते हैं ट्रांजिस्टर से, तो
हमें याद रखना पड़ेगा कि एमीटर बेस जंक्शन should be what? Forward biased, while collector base junction should be reversed. देखिए, यदि ये मैं आपका ट्रांजिस्टर बनाता हूँ फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, ये आपका मान लिया एन पी को और कम बनाइए, ये यदि मेरे को फॉरवर्ड बायस करना है तो एन का मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपका सर्किट हो गया। अब ये एन है, इसको मैंने करना है रिवर्स बायस, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? पॉजिटिव। VCC और V। अब ये जो सबस्क्रिप्ट हैं इसका भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम किस प्रकार लिखते हैं। इस सी, ये सी है, इसका क्या मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, ई यहाँ पर है, इसका क्या मीनिंग है, और ई इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, बाइसिंग रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, एन का मतलब है नेगेटिव है, पी का मतलब पॉजिटिव है, और हाँ एन, पी और एन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि एन पी एन यदि ट्रांजिस्टर है तो आपका कलेक्टर और बेस क्या होंगे? पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू दिस एमीटर। दिस इज पॉजिटिव, this is positive with respect to emitter, and this is always also positive with respect to emitter। ऐसे ही यदि मैं पी एन पी बनाऊं, पी एन पी बनाऊं, फिर क्या होगा? कलेक्टर और बेस क्या होंगे? नेगेटिव, किसके विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। तभी ये होगा क्या? अब तब ये नॉर्मल फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि तभी ये रीजन आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा और ये आपका रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि जो एमीटर है उससे करंट आपका कहाँ जाएगा? कलेक्टर साइड में। फॉरवर्ड बाइसिंग का दूसरा मीनिंग क्या है कि जो एक्यूरेट मीनिंग है वो क्या है? जो जिस टाइप का आपका एमीटर है, ये एन टाइप का एमीटर है, हाँ एन टाइप का सेमी कंडक्टर है। यानी यहाँ पर है क्या?
ये इस प्रकार का मेटेरियल है कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इसलिए N फॉर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। वो आपके फॉरवर्ड बायस्ड तब होगा जब उसको रिपेल करेगा। कौन? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जो आपने एमीटर बेस जंक्शन के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, ये रिवर्स बायस्ड है। यानी एन में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने डोपिंग कर रखी है, और ये कह रहा हूँ मैं रिवर्स बायस। इसका मतलब ये नेगेटिव है तो हमने यह क्या करने पड़ेगा? पॉजिटिव। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स बेस को पार करते हुए जाएंगे तो इनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अब ये डबल सब्सक्रिप्ट हमने लगा रखी है। पहली जो सब्सक्रिप्ट है ये सी फर्स्ट, वो क्या करती है? वो बताती है कि जो पॉइंट है या टर्मिनल है वो मोर पॉजिटिव है सेकंड से। यानी यहाँ पर यदि सी है तो ये सी से ज़्यादा क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। पहली सब्सक्रिप्ट हमेशा बताती है कि वो सेकंड सब्सक्रिप्ट से ज़्यादा पॉजिटिव है, या ये कह सकते हैं वो इससे लेस नेगेटिव है। मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव। ठीक है। ये आपका बेसिक पार्ट था कि ट्रांजिस्टर की फीचर क्या एन है, क्या पी है, क्या एन है, कौन से पार्ट को हम एमीटर बेस जंक्शन कहेंगे, कौन से को हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहेंगे, कौन सा पार्ट बड़ा होता है, कौन सा पार्ट छोटा होता है। जब भी ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है, अब आप बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये। जो ही मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। अब ये क्या है? हैवीली डोप्ड है। हैवीली डोप का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ये इसको रिपेल करेगा। और यहाँ पर क्या है? होल्स हैं। क्या है? होल्स हैं। लेकिन ये क्या है? वेरी लाइटली डोप। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन इस बेस को पार करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? कलेक्टर पार्ट में। कलेक्टर पार्ट क्या है? यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल। ये इसको सभी को अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसमें केवल 5% ही होल्स इस साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर देंगे। क्या देंगे? रिकम्बाइन कर देंगे। ठीक है। इतना पार्ट आया आपकी समझ में या नहीं आया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया नहीं आया इसमें। और कोई पार्ट, कोई चीज़ जो मेरे ख्याल से आपने सारी चीज़ +2 में पढ़ रखी हैं मोस्टली, और बेसिक जो आइडिया था वो मैंने इसमें आपको बता दिया है। अब इसके बाद आती बाइसिंग, जो आपकी कॉमन एमीटर, कॉमन बेस। ठीक है। ये जो इस प्रकार की जो बाइसिंग आती हैं, सीसी कॉमन कलेक्टर की जो बाइसिंग है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।